Good morning, students. I am Chauhan sir from Indo-Bharat International Public School. Today we discuss about the topic polynomials, chapter number 2 for the class 10. Now chapter number 1 is already completed for the class 10. Now polynomial. We already discussed about the polynomials in class 9. The introduction of polynomial, what is the polynomial and what is the properties of the polynomial. Now again continue this topic, the name of chapter 2, the polynomials. Polynomials, that means poly plus nomial. This word polynomial formed by the poly plus nomial, where poly means many and nomials means terms. They are any algebraic expression which formed by many terms, that is called polynomial. Maybe single term, maybe 2 terms, 3 terms, 4 terms, 5 terms. These all are called polynomial. But here we discuss only about the quadratic polynomials. Quadratic polynomials mean algebraic expression which have the highest power, highest degree. Power means degree. Highest degree is the 2. That is called the quadratic polynomial. And here find the number of zeros for this quadratic polynomial. Now first we discuss the the graph of the polynomials. In the first exercise, based on the graph, exercise number 2.1, there are some graphs are given. All the graphs we draw in your book. There are polynomials denoted by y is equal to px. Where any algebraic expression, a polynomial, draw the graph according to the value of x. If this graph intersect or touch on the x-axis, the number of zeros are already find out. See, in first graph, the one line is the draw. This is the y equal to px. That means this line is the parallel to x-axis. What is the meaning of this? That means this line is not intersect at x-axis and not touch. तो क्या मीनिंग होगा इसका? अगर ये x एक्सिस पे टच नहीं हो रही है और ना इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस आर 0. यहाँ नंबर ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या है? फाइंड द वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x. हाउ मेनी वैल्यूज फॉर x. यहाँ जीरो का मीनिंग ये नहीं है. जीरो का मीनिंग यहाँ पे ये है कि किस वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल कंप्लीट जीरो के इक्वल होता है. दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ जीरोस. सो here number of zeros is equal to, यहाँ मैं लिख रहा हूँ number of zeros is equal to 0. हम find out कर रहे हैं number of zeros for the following graphs. Now see the second graph. This graph like this one. The graph means divide in the 4 quadrant, x-axis and y-axis. This graph intersect at x-axis at one point. That means number of zero is 1. Means value of x is equal to 1. यहाँ हम x की 1 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड, दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस 1, 2 and 3. ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है. दैट मीन्स इट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो देयर नंबर ऑफ जीरोस आर 3 बिकॉज दिस graph is intersect on x-axis at the 3 points. So easily you can find out there are 3 number of zeros. Now in fourth graph only intersect at the 2 points. So number of zeros is 2. In fact 1, 2 and 3 एक पे intersect हो रहा है, सेकंड पे वो टच हो रहा है, थर्ड पे भी वो टच हो रहा है. टच मीन्स अगर वो टच तभी होगा जब वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करेगा. तो यहाँ 1, 2 and 3 नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3. इन लास्ट 1, 2 and 3 number of zeros is 3.
Similarly, here find out the number of zeros. You can find out the graph means the line and curve the intersect at the x-axis. लाइन भी हो सकती है और जनरली इनको हम बोलते हैं कर्व। एनी कर्व हाउ मेनी पॉइंट्स इंटरसेक्ट एट द x-axis, जितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करती हैं या टच करती हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के लिए। ऐसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं और क्यूबिक भी हो सकते हैं और 4th डिग्री भी हो सकते हैं, 5th डिग्री भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या देखा कि हमने एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने फाइंड आउट किए थे नंबर ऑफ जीरोस। ये तो आपका हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 इज द कंप्लीटेड। 1 मार्क के क्वेश्चंस में ये ऐसे ग्राफ गिवन होंगे और आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि फाइंड द हाउ मेनी जीरोस इन द फॉलोइंग गिवन ग्राफ। द वेरी सिंपल, आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो आप उतने ही नंबर ऑफ जीरोस की। अगर एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो वो पैरेलल है लाइन, तो वहाँ नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 होगा। मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट फाइंड आउट, दैट मीन्स इज 0। इज क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दैट मीन्स एक्सरसाइज 2.2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे देखा जाए तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो क्लास हम 8th में भी डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 9th में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके लिए ये नया कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्लास 10th में भी वापस यूज़ हो रहा है, तो मैं एक बार वापस से इसको रिपीट करूँगा। अगर आपके दिमाग से निकल गया है तो एक बार वापस से ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आपको गिवन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द हाउ मेनी जीरोस फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो सिंपल है, अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर इज द 2, दैट मीन नंबर ऑफ जीरोस इज 2, मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइंड आउट दैट इज 0। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ वेरिएबल x यूज कर रहे हैं, हम वेरिएबल x भी यूज कर सकते हैं, s भी, u भी, y भी, t भी, कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि हर बार x ही हो। वहाँ पर आपको ये देखना है कि वेरिएबल आप किसी भी फॉर्म में p भी हो सकता है, u भी हो सकता है, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फॉर्म में u, y भी हो सकता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वो वेरिएबल ही है, आपको सोल्व करने का मेथड सेम ही होगा। मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, there are 1 2 3 4 5 and 6 quadratic polynomials are given and you can find out easily, या आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं सारे फाइंड आउट करता हूँ तो आपके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हो। करने का मेथड मैंने आपको सिंपली यहाँ हमने किया था x² - 2x and -8, इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन। फर्स्ट स्टेप, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट ऑफ x²। ये सेकंड क्वेश्चन में अगर देखें तो कांस्टेंट टर्म 1 है और x², कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 4, तो मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 है। इस 4 के आपको फैक्टर्स करने हैं। यहाँ हम बात करते हैं 1 है तो 1 × 8 के ऐसे आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि प्लस और माइनस करने पर आपको ये देखना है कि मैं अगर प्लस करता हूं तो -2 मिलना चाहिए मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है -2, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलना चाहिए -8। तो पहले एक काम करते हैं, देखो हम स्टार्ट करते हैं 2, 8 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 × 4, 2 × 4 इज द 8, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें देखना ये है कि इनको प्लस करते हैं तो 6 आ रहा है, जबकि हमें 2 चाहिए, और माइनस करने पे 2 आ रहा है, तो हम किसको किससे माइनस करेंगे? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। आपको साइन किसका ग्रेटर लेना है, ग्रेटर नंबर का साइन लेना है, तो आपको -2 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप 2 को पॉजिटिव और 4 को माइनस लेंगे, तभी आपको -2 मिलेगा। देख लीजिए, -4 and +2 इज इक्वल टू -2। तो साइन भी डिस्कस करेंगे, साइन कहाँ से डिसाइड होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, x का जो कोएफिशिएंट है उसका क्या साइन है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर नंबर के साथ में आपको चलना है। तो -4 × 2 इक्वल टू -2। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, -4 × 2 इक्वल टू -8,
क्या लास्ट टर्म -8 आ रहा है? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस मेथड का नाम है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम मिडल टर्म को केवल स्प्लिट कर रहे हैं। देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड लास्ट टर्म एज इट इज -8। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज। अब ये जो -2 है मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, -4 एंड 2। आप चाहे तो 2 पहले यूज कर सकते हैं, -4 बाद में यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन x दोनों के साथ चलेगा, -4x एंड +2x। जो 3 टर्म्स है अब ये टर्म्स 4 हो गई है इवन नंबर्स में, तो आप दो की पेयर बना सकते हैं। अगर आप गलत रॉन्ग करते हैं यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली आपकी चोरी यहाँ पकड़ी जाएगी। अगर आपने रॉन्ग किया तो यहाँ पर कैसे ध्यान रखना है, मैं इन दो के पेयर बना के इनमें से मैं कॉमन लूंगा। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 नंबर आपको कॉमन लेना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 एंड 4 इसमें नंबर x एंड x² एंड x, x इज द कॉमन, वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पावर 2, तो यहाँ एक पावर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको x -4 एज इट इज, x ऑलरेडी वी टेक द कॉमन, सो x -4 राइट इन ब्रैकेट। Now in second pair plus as it is and take the 2 is the common and then x and -8 divisible by 4, 2 is the 4 times, so write here 4। आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है दैट मीन्स आपने फैक्टर्स रॉन्ग किए, तो यही आपका मीनिंग है। अगर ये सेम है तो दैट मीन्स आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन अब आपके पास 2 नंबर्स हैं, x -4, x -4, this bracket you take the whole bracket is the common, x -4 is the common, तो बचता क्या है वापस x +2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो फैक्टर्स भी 2 होंगे। अब इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो यू टेक द सिंगल फैक्टर इक्वल टू 0, इनको अलग अलग जीरो के इक्वल कीजिए। x -4 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक 0 होगा तभी इनका प्रोडक्ट भी 0 होगा। x -4 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द x वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू 4। और सपोज x +2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। Then 4 and -2, they are 2 numbers. These 2 numbers are called the zeros for this quadratic polynomial. This value 4 and -2 you can also verify it. Put the value of 4 in this quadratic polynomial. You seen this quadratic polynomial equal to 0, and also you put the value of -2 for the egg, then you can see that this quadratic polynomial is equal to 0. अगर आप ये दोनों वैल्यू अलग अलग एक बार पुट करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जीरोस आपको कौन कौन से मिले, एक 4 और एक -2। तो फाइनल आंसर क्या है, 4 and -2। इज क्लियर? सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर दिस फैक्टर्स। सिमिलरली फॉर दिस वन, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, 6x² -3 -7x। तो फर्स्ट यू टेक द -7x एंड देन टेक -3। ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाईएस्ट पावर, देन लोएस्ट पावर, देन कांस्टेंट टर्म। यहाँ आपके पास 2 ही टर्म है, तो यू टेक द 4 एंड u इज द कॉमन। फैक्टर जरूर मिलेगा आपको। 4u इज द कॉमन, देन आंसर इज u +2 एंड यू टेक द इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दैट मीन्स u इक्वल टू एक वैल्यू आपको 0 मिलेगी। t² -18 इक्वल टू 0 के इक्वल करते हैं, तो है t² इक्वल टू 15, देन t इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। 1 इज द प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, सेकंड 0 इज द माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। 3² -x 4, 4 एंड 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12, एंड 12 के आप फैक्टर्स ऐसे करेंगे कि आपको 1 चाहिए, तो यू टेक द फैक्टर इज 4 × 3, 4 - 3 इक्वल टू 1। नंबर आपको माइनस चाहिए, तो आप यू टेक द दिस इज माइनस एंड दिस द प्लस, इनको माइनस करो तो -12, तो आपको यहाँ पे माइनस है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ तो 12 है ही नहीं, लेकिन ये 12 नहीं है, ये 4 और × 3 ये 12 आना चाहिए और साइन ये आना चाहिए।
माइनस, तो ये आ गया। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने आपको डिस्कस कर लिए। देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.1 हमने कंप्लीट कर लिए। 2 एक्सरसाइज आज अपन ने कंप्लीट की है। मैं इसी चैप्टर को कल कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है वो आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज इसको डिस्कस करो, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड डे, थैंक यू।